आज हमारे बीच में हमारे संगठन के महासचिव के सी वेणुगोपाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष अजय माकन जी, हमारे सह कोषाध्यक्ष सिंगला जी और हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्री बी श्रीनिवास जी मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी पर मोदी सरकार की ओर से कर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की साजिश रचाई जा रही है। ये कांग्रेस पार्टी की हत्या नहीं है आर्थिक रूप से, बल्कि लोकतंत्र की हत्या जनता के सामने हो रही है। इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको हमारे महासचिव संगठन वेणुगोपाल जी और हमारे कोषाध्यक्ष अजय माकन जी देंगे। इसके बाद में सवाल लेंगे और इसके साथ साथ एक दो पन्ने का स्टेटमेंट भी है, वो आपको मिल जाएगा। वेणुगोपाल जी। Thank you, Jairam ji. Very good morning, dear friends. Basically, this special press conference we are holding to reveal the so-called financial terrorism imposed by the BJP government on Congress party. As per the latest information from the banks, the BJP government forced the banks of the Congress party, Indian National Congress, to transfer approximately rupees 65.89 crores from our deposits to the government. The details will be given by our treasurer. Basically, this amount is from AICC and Indian Youth Congress account and NSUI. Unlike BJP, we got this money from ordinary workers of the party. Congress party, you people know that, are extensively going for a crowdfunding, and we are collected money from the poor people of this country. That money is this. Youth Congress money means basically is they are doing membership yearly basis. Their money is totally of membership fee of a Youth Congress worker, ordinary Youth Congress worker. What does it mean? Just before the parliament election, can you imagine that? The account of the principal opposition party, basically he's been hijacked by the BJP government. We are all law-abiding citizens. Party also like that. On very, very non-serious matters, they are taking away our money. Basically, they are stealing our money from the banks. This is a clearly state of affairs to denying the minimum level playing field for a political party to fight an election. Only one question. We are also ruled this country. Whether, if any such instance, BJP can point out that they had this type of experience by the Congress-led UPA government or Congress government. Whether BJP has given any income tax as a party. This is clearly an attack on democratic principles and values. And they're trying to shut the voice of entire opposition. You people can understand this type of low-level attack never happened in the history of this country. The Congress party, BJP didn't, I don't know, they are in a false paradise. We will fight it out. We are believing, actually we are going before the tribunal, they are hearing today also. We are expecting a clear-cut verdict from them. We will take all legal actions on one side and we will go to the people of this country. Because they are the masters of this country. The way in which they are denying the democratic minimum principles and democratic values in this country, then how can democracy will be survive in this country? This is clearly an example of dictatorship. Actually, BJP is dragging the largest democratic country of the world into a dictatorship raj. We will fight it out.
We are strongly condemning it. Thank you. साथियों, पिछले कुछ दिन पहले यहीं पे एक प्रेस वार्ता में मैंने आप लोगों को जानकारी साझा करी थी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस के सभी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। आज मुझे बड़े दुख के साथ आप सब लोगों को और आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को यह सूचित करना पड़ रहा है कि भाजपा की सरकार ने सभी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ और मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरुआत कर दी। हमारे 65.88 करोड़ 65.88 करोड़ के ऊपर परसों भाजपा की सरकार, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे जो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से हमारे को मेंबरशिप के माध्यम से, एनएसयूआई के स्टूडेंट्स ने अपनी जेब खर्ची काट करके मेंबरशिप के माध्यम से क्राउड फंडिंग, जिसका 95% 100 रुपए से कम हम लोगों के पास में आया था, वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके, चोरी करके वो पैसा मोदी सरकार अपने पास में लेकर के चली गई। मैं बताना चाहूंगा ये 5 अकाउंट्स हैं जिससे कि पैसे लिए गए हैं। मैंने आपको बताया था पिछली बार कि हमने इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई है। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में हम लोग 14 तारीख को उसी दिन चले गए थे जब हमारे बैंक्स में फ्रीज करने का नोटिस आया था, और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने हमारे 21 तारीख को हियरिंग लगाई थी, कल दोपहर को 2:30 बजे की। उससे ठीक एक दिन पहले इनकम टैक्स के ऑफिसर्स बैंक में जा करके, एक बैंक के ब्रांच में जाकर के वहां पर धमकी दे करके मैनेजर्स को कि ये पैसा हम आपसे पर्सनली वसूल करेंगे अगर आपने हमारे को नहीं दिया, ऐसा कह करके उन्होंने 5 बैंक्स के ब्रांचेस से 65.88 करोड़ 65 करोड़ 88 लाख 81,474 रुपए उन्होंने इन बैंकों से वसूल कर लिए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, जिसमें इंडियन यूथ कांग्रेस के 4 करोड़ 20 लाख 35 हजार, एनएसयूआई के 1 करोड़ 43 लाख 98 हजार और बाकी लगभग 60 करोड़ रुपए कांग्रेस के एआईसीसी के अकाउंट जो बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में है, इन तीनों बैंक से ले लिए गए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जहां पे आईवाईसी और एनएसयूआई का अकाउंट है वहां से ले लिया गया। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड होती हैं। जहां तक के इंडिविजुअल्स की बात है, मुझे पता चला है कि हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट्स और इवन फाइनेंस मिनिस्टर ने भी डीब्रीफिंग के दौरान कहा कि इनकम टैक्स तो देना पड़ेगा, हम भी देते हैं, हम सब लोग इनकम टैक्स देते हैं, खरगे जी भी इनकम टैक्स देते हैं, राहुल जी भी इनकम टैक्स देते हैं, हम सब इंडिविजुअल्स इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इनकम टैक्स नहीं देती। अगर आपको कंपेयर करना है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भाजपा से कंपेयर करिए, दूसरी नेशनल पार्टी से कंपेयर करिए। क्या भाजपा ने आज तक के कभी भी इनकम टैक्स दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कभी भी पीनलाइज करके कभी भी इनकम टैक्स लिया गया? हम लोगों के पास में जो पैसा आता है, ये पैसा हमारी देश के राजनीति के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए वो पैसा खर्च किया जाता है। ये इनकम नहीं है, कोई किसी की इनकम नहीं हो रही है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को हमेशा इनकम टैक्स से अलग रखा जाता है। हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज इसी वजह से इनकम टैक्स एग्जेम्प्टेड होती हैं हमेशा। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी पेनल्टी नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी इनकम टैक्स नहीं दिया, तो फिर कांग्रेस से क्यों मांगा जा रहा है? 210 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर वसूली करी गई, 210 करोड़ की वसूली रखी गई। प्रश्न 2-3 बड़े महत्वपूर्ण उठते हैं। क्या चार्ज लगाया गया? क्या कारण से वसूली करी गई? हास्यास्पद है। एक चार्ज लगाया गया है कि कांग्रेस के पास में हम लोगों ने 142.83 करोड़ 142 करोड़ 83 लाख रुपए 2018-19 के अंदर कुल हमारे को सब लोगों ने मिलकर के पैसे हमारे पास में आए। कितने? 142 करोड़ 83 लाख 142.83 करोड़ 142.83 करोड़ में से सिर्फ 14 लाख 49,000 14.49 लाख सिर्फ हमारे एक्स एमएलएज और एक्स एमपीज ने अपना 1 महीने का अपना उन लोगों ने जो उनको मिलता है, मेहताना मिलता है, उस पैसे को उन्होंने दिया, जिसमें वेणुगोपाल जी ने भी उस वक्त 1,08,000 रुपया हमारी मनमोहन सिंह जी की कमेटी के हिसाब से दिया। ऐसे पूरी लिस्ट है कि जिन लोगों ने उस वक्त पैसे अपना 1 महीने की तनख्वाह सिर्फ दी। और 142.83 करोड़ में से सिर्फ 14 लाख रुपए
कैश में आने की वजह से 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। 31 दिसंबर तक के हम लोगों को अपने अकाउंट्स देने थे, 31 दिसंबर की जगह 2 फरवरी को अकाउंट दिया गया, इसलिए सारे के सारे पैसे को उसके इनकम टैक्स के से हटा करके 210 करोड़ की पेनल्टी लगा दी गई। कभी भी आज तक ऐसा नहीं होता। अब दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न टाइमिंग का होता है। 2 फरवरी 2019 के को हम लोगों ने ये सबमिट किया है, अब क्या है फरवरी 2024, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के बाद में अब जाकर के सरकार, अब जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब 1 हफ्ते के बाद में नोटिफिकेशन आने वाला है, अब जाकर के वो जागी है और जाग करके वो हमारे सारे बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल करके सरकार ले रही है। ये कहां का न्याय? पूरी तरीके से सरकार की ये कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से पंगु कर दिया जाए, क्रिपल कर दिया जाए, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, आर्थिक तौर के ऊपर। पूरी कोशिश है कि सरकार की पूरी कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी को आर्थिक तौर के ऊपर पंगु कर दिया जाए, क्रिपल कर दिया जाए, ताकि हम लोग इलेक्शंस नहीं लड़ पाए। अगर मान लीजिए हम लोगों के पास में बैंक के सारे पैसे हम लोगों के फ्रीज हो जाएंगे, तो कैंपेन कैसे होगा, पब्लिसिटी कैसे होगी, कैसे हम लोग जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम कैसे करेंगे? और उनको भी, सरकार को भी अच्छी तरीके से पता है कि ये गैर कानूनी है और अंततः हमको इसमें हर हालत के अंदर हमको ये पैसा वापस हमारे को मिलेगा ही मिलेगा, कोर्ट से हमारे को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब तक चुनाव निकल जाएंगे और सरकार का अपना काम पूरा हो जाएगा, तो ये कुछ प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम आपको, मीडिया को ये कहना चाहते हैं कि अब ये आपका कर्तव्य बन जाता है कि हमारे देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करना है। जो हम लोगों का कार्य होगा वो हम लोग करेंगे, सड़क के ऊपर उतर करके लड़ेंगे, आपके माध्यम से लड़ेंगे, पूरी ताकत से सरकार से लड़ेंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया मूक दर्शक ना बने, कृपया आप लोग इन सब चीजों को लेकर के लोगों के बीच में जाएं। हमें जुडिशरी से हमें उम्मीद है, हमें ट्रिब्यूनल से उम्मीद है कि हमारे साथ में न्याय होगा, हमारे देश के लोकतंत्र के साथ न्याय होगा। अगर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का इस तरीके से पूरे अकाउंट से इलेक्शन से 1 हफ्ता पहले फ्रीज कर दिया जाए, तो हमारे पैसे सारे के सारे उसमें से निकाल दिए जाएं, तो हमारे देश में लोकतंत्र बचेगा ही नहीं। धन्यवाद। आदरणीय एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल जी ने भी विस्तार से सारे बात रखे। अजय मकन जी भी पूरा विद फैक्ट के साथ नंबर जो बताया, इसमें साफ साफ दिख रहा है यूथ कांग्रेस का 4 करोड़ 20 लाख रुपए किस तरीके से इन लोग ने खाते से, जो मेंबरशिप का पैसा जो एक एक कार्यकर्ता ने जो युवा कांग्रेस का मेंबरशिप लिया है, उस पैसे किस लेवल पे इन लोग ने लूटने का काम, ये पॉकेट मार सरकार है, सब हम जानते हैं किस तरीके से इन लोग ने जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स का जो पैसा गरीब लोग से जो चोरी किया, अभी वहाँ इनको वहाँ छोड़ के अभी सीधा पार्टीज का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्रंटल हो सारे उस खाते में पैसा किस लेवल पे इन लोग ने लेने का काम किया है। मैं इन सरकार को ये समझना चाहिए, इस लोकतंत्र में पहली बार इस तरीके को देखने को मिल रहा है। और किस लेवल पे इन लोग ने जाके बैंक में जाके वहाँ दबाव बना के वहाँ से उन लोग ने पैसे किस लेवल पे इन लोग ने ये किया, ये तो पूरा कहीं ना कहीं पूरा तानाशाही सरकार किस लेवल पे चला रहा है। जो कार्यकर्ता का लगातार जब इन लोग ने अकाउंट फ्रीज किया तब से फोन, सारे लोगों का फोन आ रहा है। अभी इस समय में 5 साल के बाद किस लेवल पे इन लोग ने इस तरीके से काम किया है, तो चुनाव का इनका ये कहीं ना कहीं इनको डर है। इसका समय भी देखे तो इनका जो तानाशाही जो इन लोग ने जो किया है, इसको लेके पूरा जो हम लोग ने, पूरा देश का जनता भी इसको सवाल पूछेगा और जवाब इस सरकार को भी देना चाहिए। आप लोग भी इसको बड़ी लेवल पे, ये सरकार किस तरीके का जो तानाशाही जो नीति कर रहा है उसको लेके सरकार को भी सवाल आपके तरफ से भी बड़ी लेवल पे उठना चाहिए। साथियों, मैं एक दो और बात जो अभी वेणुगोपाल जी और माखन जी ने कहा है उसको थोड़ा विस्तार से कहूँगा कि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के ठीक 1.5 महीने पहले नोटबंदी की घोषणा की गई थी। ये नोटबंदी का संदर्भ क्या था? नोटबंदी का संदर्भ ये ही था कि बीजेपी भुखलाई हुई थी उत्तर प्रदेश में, घबराई हुई थी कि समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, सभी पार्टियों को जो जनादेश मिलने की जो गुंजाइश थी उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने अचानक 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा की। और नोटबंदी का एक ही मकसद था कि सारी पार्टियों को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव न लड़ने आ जाए। और ऐसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ ये कर आतंकवादी हमला हुआ है,
इसका एक ही मकसद है, आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाना, ताकि हम चुनाव नहीं लड़ पाए। आपने कल पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स छोड़ा, और ये कंपनियां जिनके खिलाफ ये जांच हो रही थी, इन्होंने तब उचित समझा कि हम चंदा दें बीजेपी पार्टी को, और बीजेपी पार्टी ने 330 करोड़ रुपया कमाया चंदा के रूप में इन 30 कंपनियों से। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ो, कंपनियों के पीछे धमकी दो और चंदा वसूल करो। ये एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाओ, प्रमुख विपक्ष पार्टी को अपंग बनाओ, और दूसरा तरीका है निजी कंपनियों के पीछे ईडी छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, और वो अपने आप पटरी पर आ जाएंगे। ये 30 कंपनियों ने 335 करोड़ रुपया चंदा दिया है पिछले 2-3 सालों में, और ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, कंपनियों के नाम है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये कंपनियों के नाम भी हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे कल, पर आज हम यही कहना चाहते थे कि हमारे लोकतंत्र के आज के प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ जो कर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, ये हम न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे। टैक्स ट्राइब्यूनल में आज हमारी सुनवाई हो रही है, जनता के बीच में जाएंगे। पर यह बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भोखलाई हुई है, घबराई हुई है, बेरोजगारी से घबराई हुई है, किसान आंदोलन से घबराई हुई है, और इसलिए आज आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उत्पीड़न की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति का एक और मिसाल। अगर अभी आपके कुछ सवाल हैं तो वेणुगोपाल जी और अजय माकन जी उसका जवाब देंगे। हाँ जी, हाँ मौसमी। देखिए, हम लोगों ने जब ट्रिब्यूनल में डाला था तो पहली हियरिंग ट्रिब्यूनल की 16 तारीख को हुई थी, और 16 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि हमने ये लियन मार्क कर दिया है, और अकाउंट फ्रीज नहीं किया लेकिन लियन मार्क किया है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था। लेकिन 20 तारीख को उन्होंने एक स्टेप आगे जाकर के वो पैसा जो है वो जब्त कर लिया। लियन मार्क करने का मतलब होता है कि वो पैसा ब्लॉक कर दिया। तो पैसा जब ब्लॉक कर दिया बैंक के अंदर कि वो हम खर्च नहीं कर सकते, तो उसके बाद में वो पैसा विड्रॉ कैसे कर लिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने? तो यही हम लोग दोबारा से जाकर के हम लोगों ने बोला है। दूसरा, इसके अंदर एक चीज आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये जो है हमारे टोटल 11 अकाउंट्स हैं, 9 कांग्रेस के और 2 हमारे दूसरे अकाउंट्स हैं, 4 टोटल बैंक्स हैं जिसमें ये अकाउंट्स हैं। हमारे हर ब्रांच के अंदर इनकम टैक्स की चिट्ठी गई है कि 135 करोड़ किसी में और किसी में 75 करोड़ रुपए हमारे जो है वो सरकार को वापस दे दिए जाएं, जिसको बाद में इन्होंने कहा कि लियन मार्क किया। किसी भी बैंक के अंदर हमारे पास में 135 से ज्यादा नहीं है और 75 करोड़ से ज्यादा नहीं है। तो इसीलिए इफेक्टिवली हमारे सारे के सारे बैंक्स के खाते हमारे फ्रीज हुए हैं। तो जब 9 मन ना तो तेल होगी ना राधा नाचेगी, ना जब पैसा ही 135 करोड़ से ऊपर ही नहीं होगा किसी बैंक में, या 75 से ऊपर नहीं होगा, तो फिर वो हम पैसा वहां से कैसे निकालेंगे? इन्होंने इससे एक कदम और आगे जाकर के लियन मार्क करने से भी नेक्स्ट स्टेप इन्होंने जो है वो हमारे पैसे में से डाका डाल करके 65.88 करोड़ वापस हमारे निकाल दिए, जो उन्होंने एक स्टेप और ज्यादा आर्बिट्रेरीली गलत किया। अब इनकम टैक्स ने पैसा जब ले लिया, आपको सब लोगों को मालूम होगा जो इनकम टैक्स से अगर कोई डील करता है कि उनसे पैसा वापस निकलवाना कितना मुश्किल होता है। No, let me clarify. We have not said that we are not getting relief from the tribunal. No, just a minute. Yesterday, Income Tax Tribunal had put a stay on income tax to take out further money from our banks. So this is what Income Tax Tribunal yesterday has already done that. The Income Tax Tribunal has said that the income tax cannot take out further any amount from our banks. So already 65 has gone. But further, the Income Tax Tribunal has stayed. This is the first thing. Secondly, Income Tax Tribunal is again, the argument is before Income Tax Tribunal again today in the afternoon. And there is a process in the law
we can't directly approach the High Court. Before we approach the High Court, it has to be disposed of at the level of income tax tribunal. That is why I am saying that the process of law, legal process is very lengthy. And we are fully confident that we'll get justice from the tribunal, from the law. But by that time, the elections would be over. And this is what is the aim of the government. आपने कहा कि जनता की अदालत में भी जाएंगे और अदालत में भी जाएंगे, तो क्या इंडिया अलायंस के बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेकर के कांग्रेस पार्टी कोई मूवमेंट बिल्ड करेगी इस मसले पर? So this is not only for Congress party. The government is targeting entire opposition parties in different ways. Certainly, we will take it up in a united manner. वेणुगोपाल जी, आपने कहा कि आप जनता के बीच भी जाएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा एजिटेशन और इनिशिएटिव प्लान कर रही है बिल्कुल बिल्कुल आप जनता के बीच कटोरा लेके जाएं कि भाई हमारे सारे फंड सीज हो गए हैं और अब जनता के पैसे से ही और जनता जो दान देगी उसी से चुनाव लड़ पाएंगे? No, 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 no. We, एक मिनट जयेंद्र, एक मिनट आऊंगा। दो सवाल जाएगा। वेणुगोपाल जी, आपने रिप्लाई नहीं किया। what is already we are going to the masses to expose the union government, the way in which they are targeting the entire opposition. That we have definitely, we already done agitation, national level agitation 3 days before. Again, we will take it up to the people. हाँ जी जयेंद्र। सर वही सवाल है कि जब अपील ट्राइब्यूनल के पास ये मामला है, इसके बाद भी जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बैंक खातों, कांग्रेस के बैंक खातों से इनकम टैक्स विभाग का आप आरोप लगा रहे हैं कि वसूली की गई है धमकी देकर के, क्या इस मामले को कल आप लोगों कल जो सुनवाई हुई इस मामले को कांग्रेस की तरफ से उठाया गया और ट्राइब्यूनल ने क्या कहा? एक सवाल। और दूसरा ये कि सत्यपाल मलिक जी के घर और उनके करीबियों पर कार्रवाई हुई है, उस पर कांग्रेस को ये दूसरा प्रश्न अलग से इसका है। पहला जो है, हमने कल सुबह मेंशन करके सुओ मोटो, क्योंकि कल हमारी हियरिंग इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में दोपहर को 2:30 बजे थी, लेकिन परसों ये कार्रवाई 65.88 करोड़ की हुई, तो इसलिए कल सुबह हम लोगों ने अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने मेंशन करके उनसे स्टे इसका कराया। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने हमें स्टे कल सुबह दिया कि फर्दर पैसा इसमें से नहीं करा जा सकता। ये ट्रिब्यूनल ने कल सुबह स्टे दिया, जब भी हमारा ये 65 करोड़ तक के अटका हुआ है, नहीं तो ये अभी तक के पूरे 210 करोड़ रुपए ये ले जाते अगर सुबह स्टे नहीं देते तो। सर आप कहते हैं चुनावों में जो है आर्थिक रूप से अपंग बनाने की कोशिश की जाती है। मेरा सवाल तो ये है कि कितने पैसे जो है पिछले चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने खर्च किए थे, भाजपा ने खर्च, और भाजपा ने कितने खर्च किए, कोई डेटा आप कांग्रेस का बता पाए? क्या कितने पैसा चाहिए होता है पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए, प्रचार? देखिए, ऑफ हैंड कितना चाहिए होता है और पिछली बार कितना खर्च हुआ ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये हमारे जितना पैसा चाहिए, हमारे कितना खर्च हुआ, ये सारा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है। तो ये बहुत ही इसमें पारदर्शिता है, कांग्रेस पार्टी ने कितना पैसा हमारा आया, कितना खर्च किया और किस किस मद पे खर्च हुआ, ये सारी चीजें हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया, जो हमारी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में है, हर पॉलिटिकल पार्टी का। अब जो है इस टाइम के ऊपर लगभग 250 करोड़ के करीब का सारे बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट समेत सब चीजें मिलाकर के यूथ कांग्रेस एनएसयूआई का हम सब लोगों का पैसा था, ये लगभग 250 करोड़ के करीब। और ये सारा का सारा पैसा हम लोगों ने इकट्ठा करा है किस तरीके से, अपने वर्कर्स से पैसे लेके, मेंबरशिप ड्राइव्स के माध्यम से। ये कोई धनाढ़ मित्र पूंजीपतियों का पैसा नहीं है, ये कोई इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल कॉर्पोरेट बॉन्ड का पैसा नहीं है, ये पैसा हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे एनएसयूआई के स्टूडेंट्स का, इनके सब लोगों की एक तरीके से जेब खर्ची का पैसा। तो ये पैसा हम लोगों का यहाँ पर है और इसी पैसे से हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, इसी पैसे से हम पब्लिसिटी करने की तैयारी कर रहे थे, पब्लिक मीटिंग्स करने की तैयारी कर रहे थे, जो जिसपे सरकार ने डाका डाल दिया। बैंक को एज पर लॉ इनकम टैक्स जो है ऑफिसर्स आकर के उनको धमका करके, डरा करके उनसे पैसे उन्होंने निकाला। बैंक्स को बताने की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे को। इनकम टैक्स एज पर लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर लॉ अगर चाहे तो निकाल सकती है, लेकिन जिस तरीके से निकाला गया, जो टाइमिंग करी गई, ये संशय पैदा करता है कि ये टाइमिंग क्या है। जिस तरीके से धमका करके निकाला गया, जो इवन लेटर भी जो बैंक को दिया गया है, मैंने उसको ट्विटर पे भी डाला है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं, आपको कॉपी भी देंगे। उसके अंदर ये लिखा हुआ है बैंक मैनेजर को कि यू वुड बी पर्सनली लायबल इफ यू डोंट ट्रांसफर द मनी। बैंक मैनेजर को अगर ये कहा जाए कि पर्सनली आप लायबल होगे, मतलब आपसे पर्सनली पैसा वसूल किया जाएगा जो कांग्रेस का आप अगर नहीं दोगे, तो उसके बाद में क्या बचता है? सर एक तरफ आप लोग जो पैसा फंड इकट्ठा कर रहे थे, आम जनता से ले रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, और उसी
बिल्कुल, देखिए दोनों चीजें आपको दोनों चीजों को देखना पड़ेगा साथ साथ में। एक तरफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉन्ड जिसके माध्यम से भाजपा ने पैसे इकट्ठे करे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो अभी भी वैसा के वैसा है, उसके पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जो दूसरा हमारे खून पसीने के, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे क्राउड फंडिंग का पैसा, हमारी मेंबरशिप का पैसा, हमारे एनएसवाई के स्टूडेंट्स की जेब खर्ची का पैसा, वो पैसा हम लोगों का डाका डाल करके भाजपा की सरकार ले जा रही। तो ये कहां का लोकतंत्र है, ये कहां की लेवल प्लेइंग फील्ड है? अजय जी, अब जबकि आपकी क्राउड फंडिंग भी चल रही थी, सदस्यता अभियान भी चल रहा है, तो लोग पैसा तो बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। अब जबकि बैंक फ्रीज हो जा रहा है, कहीं उसमें से सरकार ले रही है, तो क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को, चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है, तो ये निर्देश देने की या कोई व्यवस्था बनाने की वो सीधे कैंडिडेट को ही कम पैसे दें, जो कैश है वो दे दें, न कि बैंक में जमा कराएं, या बैंक में अभी भी जमा करवाना जारी रखेंगे? देखिए, पॉलिटिकल फंडिंग की एक लिमिट है कि हम 2000 रुपए से ऊपर कोई भी पैसा हम कैश में नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इनका भी सवाल था कि आप लोगों के बीच में तो ये किसी को भी कोई भी पॉलिटिकल फंडिंग, चाहे कैंडिडेट हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, हम लोगों की एक लिमिट है कि हम उससे ज्यादा पैसा हम लोग 2000 रुपए से ज्यादा हम लोग कैश नहीं ले सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जहां पर इतने पैसे हमारे जो है लगभग 200-250 करोड़ रुपए सीधे एक झटके में सरकार ले जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि हम पहले तो सरकार को कमाने के लिए पैसा इकट्ठा करें। No. First answer the first and then the second. No. Let me answer the second question first. As I have said in Hindi, perhaps you have just come. Acha, okay. So what I have said is that we got accounts in 4 banks in 9 different accounts. 4 banks and 9 different accounts. And every bank has got a notice from the income tax department that you have to stop 135 crores or 75 crores. Every bank has got. In no bank account, no individual bank account, we got more than 135 or more than 75 crores. So virtually every bank account was frozen. So we could not take out even a single penny from our bank accounts. So this is the first thing which you have to understand. Secondly, they had said they have marked lien. Marking lien means they have just blocked. So once they have just blocked and they have said this before the income tax appellate tribunal, then what right do they have to take out money from these banks? No. We've got multiple accounts. I've explained also. I've said that we